तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावतु। ओम ओम शांति शांति शांति। शांति। हरि ओम तत्सत। आइए बोलू महाराज, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए ओके। बोलिए। अच्छा। फ्यूचर ऑफ इंडिया। नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापहारणे। महाराज, मैं तो 12th बैट्समैन हूँ, 12th रिजर्व में से आया हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं थोड़ी गलती भी कर दूं, तो जरा क्षमा करते रहना। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? एक 12th मैन होता है ना क्रिकेट की टीम में, बाहर बैठा रहता है फील्डिंग। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। हमारे ग्रुप में हो, अंदर ही हो, बाहर नहीं हो। बस ये तो आपकी कृपा है महाराज। अरे कृपा नहीं, और एक्चुअली फैक्ट है। हमारी भी यही हालत हो जाएगी फिर ऐसा बोलोगे तो। थैंक यू महाराज, थैंक यू एवरीबॉडी। Okay, so I start this subject, future of India. This is a very important subject and very thought-provoking lecture, which was delivered by Swamiji in Madras. The exact date is not discernible, but it appears that this talk was given after he returned from West, and from Ceylon he came to Madras, and there he gave this lecture. Hearing aid નો અવાજ આવે છે. Hearing aid નો અવાજ આવે છે અંદર. One of the few true lover of India, he was the one of the most lover of India, was highly concerned of prevailing condition in India. And it appears that even after 125 years of this talk, we have done lot of work. Yet we still lack to perform to bring ourselves to the dream he had visualized for future of India. He started talk with presentation of our glorious past. We have the unique nation with unique history and is gifted with most sacred Himalaya, giant rivers and great monuments of past, inclusive of great temples we have. The grand foundation in the field of spirituality and philosophy by greatest sages that ever lived is our most precious heritage. It was India where concept of immortality of soul, the existence of God, concept of immanent God in nature and in man was developed. This is the land from where waves of spirituality and philosophy flowed to entire world. So this is about our past, that what Swamiji started with. India has withstood hundreds of foreign invasions and stood firmly more than solid rock. Like an eternal soul, the soul never get destroyed. The same way Swamiji compared India, that life in India remained of the same nature like an immortal soul. And we are the children of such a country. So we have a proud heritage. Looking back in past is not considered useful, but his idea, Swamiji's idea was to understand past to build future. Look back as far as you can. Drink deep of the eternal fountain that are behind, and after that, look forward
and make India brighter, greater, much higher than she ever was. We must first recall that our ancestors were great visionary whose blood still flows in our veins. There has been period of decay and degradation. This period of decay through which we have passed is all the more necessary because out of this decay is coming the future of India. And to speak to you, Swamijis. The problem in India are more complicated, more momentous than the problems in any other country. Race, religion, language, government, all these together make a nation. Taking race after race to India like Aryan, Dravidian, Tatar, Turk, Mughal, and then finally Europeans was not problem in any other country. Of languages, the most wonderful conglomeration is here. We have the languages, rich amount of languages in India. So that is also one of the things we have to remember. And it has advantage also and a disadvantages also. Of manners and customs, there is more difference between two Indian races than between European or Asian, any other Asians. Then what is the, all these are the differences we have. But what is the common ground? The only common ground that we have is our sacred traditions and religion, upon which we have to build our nation. So this is the beginning from where Swamiji is going to lead us. It is the religion that is the only our strong point, and we have to make it more stronger. For this reason, unity of religion is absolutely necessary as first condition of the future of India. Our religion has certain common grounds, common to all sects, despite varying in their conclusions. Within their limitations, our religion has marvelous variations, infinite amount of liberty. That is one wonderful thing, that infinite amount of liberty. No other religion has this liberty that we have to think and to live our own lives. We must bring out this life giving common principle of religion to all people of these nations. So that is what Swamiji has a dream, that we should use this religion and make it people aware of about it, the great strength of this religion we have. Understand them, know them, and try to bring them out in their lives, means lives of the people of India. This is the first step and has to be done. So that was the idea that Swamiji mooted for the future. In Asia and especially in India, race difficulties, linguistic difficulties, languages, so many languages, social difficulties. We have a social structure is very different from other countries. National differences. This all melt away. All these are there, but they all melt away. Against what? Before this unifying power of our religion. This is the keynote of Indian life. To the Indian mind, there is nothing higher than religious ideals. We can work only in the line of least resistance. So in India, it is only possible means of work when religion is the least resistance where we can work. And
because we want to work to make the good future of India, work in any other way, line other than this religion, without first strengthening this means religion would be disastrous. So first step in making of future India is unification of religion. By how to unify? What is the idea behind it? By breaking rocks of minute differences. We have religion with so many religions and sects, but there are differences. And that rock we have to break first. We must give up our little quarrels for the well-being of our race. So that is the first thing this suggested, that all these differences we have to bury them. No, we should not quarrel on these differences, but highlight this religion. His vision was very clear about religion in India and considered it as the basis of our nationality, surpassing even social and political aspect. But did not wish to say whether it was right or not. Means it's giving so much importance, even neglecting social and political aspect for the making future. Is it good or not? He says I do not know. But anyway, he says, but stand by it, even if you lack faith. And what was the faith? That he had faith in the religion. If you give it up, you are smashed to pieces. If you give up this, you have withstood the shocks of centuries. How we could stand this? Because you took great care of religion. We took great care of religion, forgetting anything else, but we never forgot the religion. Sacrifice everything to it. Our forefathers underwent everything boldly, even death, but preserved their religion. I do not mean to say that social or political improvement are not necessary, but they are secondary. They are secondary here. Religion is primary, so this is to be strengthened, and I will lay my ideas before you. I went to West. The Swamiji says he went to West for simply to propagate these ideas. I did not. This is very interesting declaration he has made here. I did not care at all for the parliament of religion or even anything else. It was simply just opportunity. This parliament religion was just an opportunity, for it was really those ideas of mine which he had for a long time that took me to all over the world. My idea is to bring out how he plans to do this. He says first thing that he wants to do is that bring out the gems of spirituality that they are hidden in our books and make them popular and common property of every Indian, whether he knows Sanskrit or not. I know how difficult it will be for large majority of people who have had no time to study this glorious language, this Sanskrit of ours. So along with emphasis of Sanskrit, means emphasis he just want to put on the Sanskrit learning, but knowledge must be given in language the people understand. Real strength of higher caste, especially Brahmin, was of their culture, education, and especially knowledge of Sanskrit language, which helped them to understand and get enlightened by very rich material in Sanskrit language. At the same time, large mass in lower trunks of
society did not get this knowledge and remained backward in education and culture also. Swamiji says it was not fault of higher caste, means Brahmin, but lower caste did not put efforts to learn. Swamiji feels learning, especially Sanskrit language, gives culture and education. And it is culture that helps to withstand shocks in life. He laments that Chaitanya, Ramanuj, and Kabir made great attempt to make religion popular among the mass. But where they made a mistake, according to Swamiji, but their efforts lasted only 100 years after departure of these great prophets. Why it happened? Why it happened so can only be explained by the fault that they raised the masses, especially lower caste, but they did not apply their energies in spreading Sanskrit language in the masses. Means ke those people had a great energy to bring the religion to them, but they should have also, according to Swamiji, given Sanskrit language also to them and encourage them to learn that. Then probably we would have done much better. That's what he says. Thus, knowledge was there, but it lacked prestige and culture. And it is culture that withstands shocks, not simple mass of education. He felt that Buddha also used people's language to spread his message, avoided the use of Sanskrit. And this was the reason it also failed. I tell you, those who belong to lower caste, only way, he's just asking these people of lower caste, only way to raise your condition is to study Sanskrit. Now, this is very interesting observation and advice that all of us also, for all of us also, this advice applies. Also, way to bring about the leveling of caste is to appropriate the culture and education, not education alone, but culture also. This done, if you can do this, you have what you couldn't want. You have what you want. Coming to Madras, he said there is theory that not all people, or this, he says that there is a theory, all people in North are Aryan and all in South are Dravidian. And Brahmin who you see in South are those who came from North. As for Swamiji, this is entirely unfounded. Whole India is Aryan. Whole India is Aryan. What is the difference between North and South? It's the language. The language is different. There is no other difference. Everybody is tribe. The Aryan who moved to South, there were Dravidian people there at that time who slowly vanished or merged with the Aryan, but the language was picked up by this Aryan who moved to South, and that is why there is a difference in the language. Aryan are from India only. There is so many theories going around, but they are all not well founded. The Aryans are from India only. They did not migrate from outside. Same way, Sudra are also considered non-Aryan. As per him, this is also humbug. He goes how to explain this. He says, go back to Mahabharata and find out reference there. That in Satya Yuga, there was only caste that was Brahmin. As time passed, due to different occupation, all multitude of caste came in existence. Brahminhood is the ideal of humanity in India. अरे वो तो चल रहा है, सीखे को बोलो जरा जल्दी बंद करने को। जल्दी बोलो। जी महाराज, थोड़ा शॉर्ट में करने कह रहे हैं महाराज। Should I go ahead?
जी जी Sanjay, how long remaining, Sanjay, Vora? Huh? How It much will take remaining? half of it. Should I go fast? Okay. If you want, I'll go a How little long you fast. can stop? What is a long time you are taking? Sir, I'm sorry. I'll Big go article, fast. it is not possible to summarize it. Okay. Okay. All right, Swamiji. Okay, stop it here. I will just Okay. give 2 points only here. That's Sorry, about it is an South. important article about Swami. India, Swamiji has told a lot of things, but it is not possible to summarize it in such a short time. Okay? Okay, Swamiji. Swami Maharaj. Okay. Okay. I go a little fast. That what is the concept of that the uh, uh, people in the downtrodden and poor people were not taken proper care, and that was the one reason they converted to other religion. 1/5 of them were converted to willingly, not by sword, to Mohammed. They became Muslim, and 1/5 of your Madras people will become Christian if you do not take care of these downtrodden people. That's what we warning he says, that we have to take care of these people. Okay. At that time he just spoke about Malabar people, but I Sanjay, am not. अरे Solution कुछ is सुनाई नहीं not दे रहा in. है, जी महाराज। कुछ सुनाई What नहीं दे is रहा है, solution? और कुछ हो रहा है। बंद करो ना बोरा को बोल के। अच्छा बोरा सर, महाराज कह रहे हैं कि थोड़ा सुनने में दिक्कत आ रही है, तो आप उसको एक लाइन में क्लोज कर लीजिए, 1-2 लाइन में। अच्छा, कंप्लीट जल्दी कर दूं? जी। Okay. The solution is, there is no solution of bringing the higher caste down, but the raising the lower one higher. That's what he suggested. Okay. By granting them more privileges to them. In coming time, he predicted that all castes are to rise slowly and slowly. Some even get admission to Brahminhood. That's what he thought. He said that in modern time, there should be no dissension between castes. And that's what point he wanted to make, is that we have to get over this caste problem. And it is breaking. So can we close here, Bora sir? The Rest voice of is the breaking, point nothing I'm listening. can be covered in the question answer. Okay. Yes. जी जी ठीक है महाराज। Yes. महाराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? और अभी भी वैसे ही आज अभी बात ठीक आ रही है, क्लियर आ रही है सबकी। अच्छा, ठीक है जी महाराज। हाँ महाराज जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बस वेरी गुड। तो अब क्वेश्चन शुरू करें। जी महाराज। देखो, ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद ने ये अमेरिका से लौटकर चेन्नई में ये लेक्चर दिया था। बहुत लंबा एक लेक्चर है ये, करीब 1.5 घंटा बोले थे ये जी। उन्होंने उस समय की भारत की जो स्थिति थी उसके अनुसार बोला था। वो कास्ट सिस्टम उस समय थी और ब्राह्मणत्व को उन्होंने महत्व दिया था, और ब्राह्मण के साथ में उन्होंने कहा था कि उसमें कैरेक्टर रहता है। कैरेक्टर का मतलब ये है कि व्यक्ति उनको वैल्यूज को अपने जीवन में उतारता है। ब्राह्मण के संस्कार होते हैं, एक बच्चा बच्चन से ट्रेनिंग होता है, इसलिए उस बात को उन्होंने कही थी। वो उस जमाने की बात थी। वो तो ये चाहते थे कि भारत के सभी लोग ब्राह्मण हो जाएं। यहाँ तक कि बेलूर मठ में उन्होंने एक रिचुअल किया था और 25-30 लोगों को जो ब्राह्मण नहीं थे उनको ब्राह्मण किया था। लेकिन दुर्भाग्य है, मेरे को लगता है कि उनकी ये प्रक्रिया या उनकी ये प्लान उसका सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद में हम इसके बारे में नहीं सुनते हैं। तो ये एक बात जाति प्रथा के बारे में बात कहते हैं। पता नहीं आज के जमाने में तो सब बदल गया है। गाँव में भी पता नहीं कोई जाति मानता है कि नहीं मानता है। वो उस संदर्भ में स्वामी जी ने जो बात कही है उसको हमको लेना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा चले सतीश विग। सतीश जी हैं, वो अनम्यूट करेंगे। हाँ, ही इज डूइंग। प्रणाम महाराज।
जी महाराज क्वेश्चन पूछता हूँ महाराज फर्स्ट क्वेश्चन there must be recognition of one religion throughout the length and breadth of this land. What do I mean by one religion? Not in the sense of Christians, Mohammedans or the Buddhists. My question Maharaj, then what one religion Swamiji wants it to be recognized in India that can unite all the different castes and communities in India? Maharaj, we have adopted a secular constitution वो स्वामी जी कहते हैं for there are multi religions in हाँ India. हाँ 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 Is uniting of Hindu religion only and strengthening it enough to regain the ancient glory we have lost? सुनो, जो तो मत तो पथ। जी महाराज वो तो ठीक रामकृष्ण है। बोलते थे ना, जितने मत जी। उतने पथ। हाँ तो भारत जी में तो महाराज। कितने लाख ऑलरेडी रिलीजन है ना। हाँ जी हाँ जी हिंदू धर्म की कितनी ब्रांचेस हैं? जी जी वैष्णव, शाक्त, शैव और सब जी कुछ क्या क्या है। जी सिख हैं, सिख में भी अलग प्रकार के लोग हैं। इस्लाम है। जी तो जितने मत उतने पद। यहाँ तक स्वामी जी कहते हैं कि जितने लोग हैं कि धर्म को इतने हो जाना चाहिए, हर एक व्यक्ति का एक मत एक रिलीजन होना चाहिए। जी जी तो यानी मैं जैसे उदाहरण के लिए ये ले लो, हम लोग रामकृष्णाइट है ना। जी 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 समझे ना तुम तो, सन्यासी और गृहस्थ हम रामकृष्णाइट हैं। जी जी महाराज। लेकिन रामकृष्णाइट में क्या है कि सब लोग अलग अलग है ना। जी महाराज जी महाराज। एक शिव की पूजा करता है, एक राम की पूजा करता है, एक रामकृष्ण की पूजा करता है। कृष्ण की पूजा करने वाले सब एक साथ। जी तो एक रिलीजन से स्वामी जी का मतलब ये है कि आप अपना जो भी आपका पाथ है उसको इंटीमेटली पालन करने का आपको अधिकार होना चाहिए। ये फंडामेंटल है। इसके अतिरिक्त कोई एक कि भाई religion should be ईसा the की center वर्शिप of करने life. से ऐसा नहीं होगा। महाराज religion should be the center of life. उनके कहने का मतलब ये कि religion should be ना the वो तो ठीक है। जी रिलीजन तो सेंटर ऑफ लाइफ होगा ही। जी जी महाराज। पर रिलीजन जो है वो प्रत्येक व्यक्ति का अपना रिलीजन होगा। जी महाराज जी महाराज। और उसमें वो झगड़ा नहीं करेगा। जी जी महाराज जी ये बात। जी महाराज। हमारे सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं फिर 288 with the giving up of quarrels all other improvements will come when the life blood is strong and pure no disease germ can live in that body. Our life blood is spirituality. My question Maharaj, why have the impurities crept in our blood stream of spirituality? Is it because the germs of जी महाराज। हाँ बोलो बोलो बोलो। Is it because the germs of spirituality? हाँ जी। बोलो कंटिन्यू करो। The germs of spirituality remain stored up in our books and in the possession of a few only, hidden as it were in the monasteries and forests. क्या ये कारण था या कोई और कारण है? ठीक था। यही कारण जी यही कारण। जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है ना। हाँ जी महाराज। केवल बाहरी रिचुअल से काम नहीं चलेगा। जी जी उसको आध्यात्मिक जीवन को, स्पिरिचुअलिटी को अपने अपने उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जी जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, लास्ट क्वेश्चन 290 पर। Therefore the ideas must be taught in the language of the people. At the same time, the Sanskrit education must go on along with it, because the very sound of Sanskrit words give a prestige and power and strength to the race. Swami says it is culture that withstands shocks and not simple mass of knowledge. My question, Maharaj, is how can we spread Sanskrit education amongst masses, because it is English education which has become the source of prestige and power now. Only education हो गई है? जी महाराज। क्या पूरा लास्ट सेंटेंस बोलो। How can we spread Sanskrit education? Last sentence. Swamiji himself in talking in the English language. Second question is,
how can we cultivate masses in our culture in the face of onslaught of Western education and culture? Are we giving man making and character building education to our children? अब ये तो तुम जानो भाई, आई थिंक नो वन इज वेरी डिफिकल्ट आज के जमाने में तो। जी जी। तो वो तो जूम में होता है मीटिंग, तो जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है। अरे कहाँ संस्कृत, हम जब पढ़ते थे जी जी महाराज, तो हमको तो एमबीबी, हम जो इंटरमीडिएट किया था तब संस्कृत पढ़ा था, और संस्कृत के मिनिमम कुछ मार्क्स प्राप्त करने पड़ते थे। जी जी, इतना हम अच्छी तरह जानते हैं। और आज अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पढ़ाया गया, वो बुढ़ापे की उम्र में। अनफॉर्चुनेटली हमारा संस्कृत हमें नहीं पढ़ाया गया। अनफॉर्चुनेटली हमें संस्कृत नहीं पढ़ाया गया स्कूलों में। पता नहीं बाबा। और हम तो अभी ये हाल है कि हमें अभी इस बुढ़ापे में रोज संस्कृत पढ़ते हैं। जी जी महाराज, रोज संस्कृत का क्या टेक्स्ट पढ़ते हैं, रोज रोज जी। ऐसा दिन एक दिन नहीं गया जब हमने कुछ पढ़ा नहीं हो। जी महाराज, जीवन मुक्ति विवेक पढ़ा है, पंचदशी पढ़ा है, पढ़ाया है। और आजकल तो वाल्मीकि रामायण हम लोग पढ़ रहे हैं बैठ के। तो ये संस्कृत तो हमारे यहाँ पे और रामकृष्ण मिशन में उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। जी लेकिन अब सरकार पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती नहीं जानते। जी जी महाराज। और स्वामी जी ने इतना संस्कृत पे जोर दिया था, लेकिन स्वामी जी का भी एक थोड़ा सा कुछ संस्कृत का लिखा हुआ 1-2 पेज 4-5 पेज कुछ ऐसा है, कोई आर्टिकल लिखा था या उन्होंने एक पत्र लिखा था, वो सब। तो स्वामी जी कहते तो हैं कि संस्कृत के साथ कल्चर है, लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल है ये कहना बड़ा मुश्किल है भाई। मैं ये नहीं कह सकता। और दूसरी बात है कि कल्चर का अर्थ है कि आप जो हो गए ब्राह्मण हो तो उसके अनुसार आप व्यवहार करो, गृहस्थ हो तो गृहस्थ के नियमों का पालन करो, सन्यासी हो तो गृहस्थ के सन्यासी का नियम पालन करो, स्वाध्याय करो, ध्यान जप करो, प्रचार करो, संयम करो। गृहस्थ को भी जो है वो नियम के अनुसार रहना चाहिए। जो भी वर्णाश्रम है, अब ये धीरे धीरे वर्णाश्रम भी जो है ना इतने रैपिडली चले जा रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है कि कैसे इस स्वामी जी जो बात कह रहे हैं वो चलेंगे। यानी 100 वर्ष पहले उन्होंने बात कही थी और अब तो लगता है कि अधिकांश सब साफ हो गया। अब मैं क्या बताऊं इसके बारे में, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। राइट महाराज जी मैं कुछ शेयर करूं? जरूर महाराज जी, मैं जब स्कूल में था 9वीं 10वीं 11वीं बोर्ड्स में 3 साल हम लोगों ने हायर संस्कृत पढ़ा, और मैं आज समझता हूं, और उस दौरान हमें गीता और कुछ और स्क्रिप्चर्स भी पढ़ाए जाते थे। खास तौर पे उसमें 2nd चैप्टर को खूब पढ़ाया गया था हमारे 11वीं में। और टुडे इट इज स्टैंडिंग मी इन ग्रेट स्टेट। जब मुझे कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़नी होती है तो मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है, तो मैं स्वामी जी का ये बात फिर समझ पाता हूँ। इट हैज हेल्प्ड मी टू एसिमिलेट एंड एब्जॉर्ब व्हाट इज बीइंग सेड इन स्वामी जी's लिटरेचर मोर, and to understand spirituality better, because सारी उपनिषद सब कुछ तो संस्कृत में ही है। महाराज तो जैसे मैंने कहा ना कि मेरा तो बहुत बड़ा वरदान है, पता नहीं किस प्रकार से हुआ, लेकिन मैं इतना हमेशा एक जीवन में कोई वर्ष भी नहीं गया जब मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी हो। एक के बाद एक किताबें पढ़ते गए, कोई साथी मिल गया किसको पढ़ के सुना दिया, ऐसा करते गए। महाराज और कोई बोल रहा था? हाँ जी, मैं बोल रही प्रभा। हाँ, वो आजकल भी ना क्लास 6 से ही ऑप्शन दे देते हैं कि संस्कृत लो, चाहे हिंदी लो, चाहे फ्रेंच या फिर जर्मन। तो जैसे भूवी ने भी लिया था संस्कृत ही, 6 से लेकर 10 तक उसने पढ़ा है पूरा संस्कृत। तो ऑप्शन होता है। उसका कारण है कि इट इज वेरी मच स्कोरिंग, अच्छा डिवीजन मिल जाता है, इसीलिए संस्कृत। मालूम है उसमें तो वो जो मैथमेटिक्स जैसा होता है, बिल्कुल उससे एकदम मार्क्स सबसे ज्यादा मिलता है। प्रणाम स्वामी जी, मैं थोड़ा कुछ शेयर करूं? मैं थोड़ा शेयर करूं? ये यहाँ उड़ीसा में बोलो। ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, उड़ीसा के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में 4th क्लास से संस्कृत पढ़ाते हैं, जो बोलते हैं कि प्रिलिमिनरी संस्कृत।
हमारे हाँ, पंजाब हाँ, के स्कूलों में नहीं पढ़ाते, अच्छा हमारे पंजाब के गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन यहाँ पढ़ाई जाती। अच्छा अच्छा ओके अच्छा ठीक ओके। अब ठीक ये ठीक क्या है कि प्रोविंशियल पे उस पे भेज दिया, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है उसके बाद। चलो भाई ठीक। सुबीर प्रणाम महाराज। मजूमदार। अच्छा भाई ठीक है। प्रणाम महाराज। हाँ प्रणाम महाराज जी। अच्छा अभी करता हूँ। संजय संजय जरा उसको ईतू को घोष को फोन करके देखो तो, जब तक हम लोग बात कर रहे हैं डिस्कस करते हैं। हाँ महाराज जी। पहला सवाल हाँ, महाराज सुबीर। जी। हाँ महाराज जी मैं बोल रहा हूँ। व्हाट डज स्वामी जी मीन व्हेन ही सेज ऑन पेज 287, वो कहते हैं वी सी हाउ इन एशिया एंड स्पेशली इन इंडिया हाउ रेस डिफिकल्टीज, सोशल डिफिकल्टीज, नेशनल डिफिकल्टीज all melt away before this unifying power of religion. How does religion solve social and political problems? वो कहते सारी डिफिकल्टी चली जाती है, वो कैसे होता है? मैं समझना चाह रहा। कुंभ मेला में देखो वहां पे फिर वहां डिफरेंशिएशन होता है कहीं पे? अच्छा कुंभ मेला में गए हो कभी? हाँ महाराज गए हैं। करोड़ों लोग एक साथ जा रहे हैं, कोई डिफिकल्टी, कोई मिलने जुलने की कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं, कोई ब्राह्मण हो कि वैश्य हो क्षत्रिय हो, कोई नहीं पूछता। जी 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 बिल्कुल। अभी ये विश्वनाथ को खोल दिया ना, विश्वनाथ का कॉरिडोर बना दिया है मोदी ने। लोग कितने लोग आ रहे हैं, कोई पूछता है कि कौन जा रहा है, ब्राह्मण जा रहा है कि क्षत्रिय जा रहा है, वैश्य जा रहा है, शूद्र जा रहा है? हाँ सब जा रहे हैं। हाँ जी जी जी। और गंगा स्नान, तो गंगा that is a- कोई नियम वो है क्या? जी यानी जी रिलीजन जो है, रिलीजन इज यूनाइटिंग फोर्स, सब हिंदू हैं, यूनिफाइंग। कोई नहीं पूछता। हाँ सब जा रहे हैं। यूनिफाइंग फोर्स, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। ठीक है महाराज, समझ गए। वेरी राइट। सेकंड क्वेश्चन 289 पेज पे था। हाउ डज रिलीजन हेल्प अस विथस्टैंड शॉक्स ऑफ इन्वेजन्स? कितने इन्वेजन्स हुए हैं एंड वी स्टिल स्टैंड फर्म। ये हुआ कैसे? हाउ डिड रिलीजन स्पिरिचुअलिटी हेल्प अस? उसका हाउ डिड इट वर्क? Because we hold held on, यानी आ रहे हैं मुसलमान, आए, अत्याचार किया, माताएं मर गई, उनके ऊपर अत्याचार हुए, तो भी वो सुबह शाम ध्यान जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्रिया अनुष्ठान करे जा रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। वो उनका संबल है सारे जीवन। गीता पाठ कर लिया, क्रिया अनुष्ठान कर लिया। हाँ, ये तो यही तो मैं कहा कि ये कल्चर जो है वो ये है। यानी रिलीजन का मतलब कुछ नहीं, वो कल्चर में, इट इज ए पार्ट ऑफ द कल्चर। यानी आपके क्या है कि नवमी, एकादशी का है, अष्टमी है, और फिर नवरात्र है, और फिर सोमवार को विश्वनाथ को जाना है, गंगा स्नान करना है। ये तो ये कल्चर में है ना, पार्ट ऑफ द समाज के अंदर है ना। प्रत्येक का दिन किया है तो एक हाँ बिल्कुल नस नस में बस गया है। एक छोटा सा कमरा बना लिया है और माँ पूजा कर रही है, रोज पूजा करती है। हाँ बिल्कुल महाराज, हाँ बिल्कुल समझ गया मैं। ये नस नस में बसा हुआ है हर एक इंडियन का ये, एंड दैट वही दैट गिव्स हिम स्ट्रेंथ। ठीक है जी महाराज। स्वामी जी का जो यूनिफिकेशन ऑफ रिलीजन में एक ओंकार, इसका भी एक टेम्पल बनाने का ऐसा भी है ना उनका? नहीं, वो तो चाहते थे स्वामी जी, लेकिन चाहते थे, वो केवल वहां पे ही हुआ है अपने बेलूर मठ में, और कुछ नहीं। और इसमें कन्याकुमारी में स्वामी जी के मंदिर में ओंकार बना हुआ, कन्याकुमारी में है क्या वहां पे? हाँ, कन्याकुमारी में ओंकार टेम्पल ही है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो। मायावती में है, मायावती में। चलो आगे नेक्स्ट चैप्टर। हाँ तीसरा सवाल महाराज जी। स्वामी जी सेज ऑन पेज 291। हाँ महाराज जी, मायावती में क्या है? मायावती में ओंकार का एक प्रेयर हॉल है, खाली ओम लिखा हुआ है, वहाँ सब बैठ के वो ही करेंगे और कुछ कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है, ओम लिखा हुआ है। और प्रेयर हॉल बहुत बड़ा है, मायावती में भी है। कारपेट है, बहुत बड़ा कारपेट है, एकदम बहुत ही सुंदर, हिमालय का नीचे में है, खाली ओम लिखा हुआ है। जी महाराज।
चलो थर्ड क्वेश्चन। हाँ महाराज जी, हाँ बोलो। पेज 291 में स्वामी जी कहते हैं, knowledge came but the prestige was not there, culture was not there. He seems obviously to be talking about giving culture through Sanskrit language. तो संस्कृत के थ्रू ये कैसे हो सकता है? Could you please explain? ऐसा है कि देखो, हमको संस्कृत सीखना हो ना तो वो इतनी आसानी नहीं है जैसे हिंदी और इंग्लिश है जी। याद है ना, एक 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 बिल्कुल उसको ग्रामर उसको रटना पड़ेगा, उसको संस्कृत को लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। संस्कृत इज ए वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज इन दैट सेंस, एंड व्हेन यू डू इट, यस महाराज, देयर इज ए कल्चर विद इट। ये दैट इज द पॉइंट स्वामी जी कहते हैं। इसलिए स्वामी जी संस्कृत को बहुत इंपॉर्टेंस उस समय से देते जी। इसलिए भी क्योंकि जो शास्त्र हैं और जो पुराण के जैसे वाल्मीकि रामायण वगैरह हैं, ये सारे संस्कृत में है, तो वी कैन, तो हम लोग सारा कुछ उसी के थ्रू पिकअप करते हैं, वही संस्कार लेते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। दैट इज हाउ कल्चर कम्स, इजंट इट महाराज? यस, दैट इज आल्सो ट्रू, दैट इज ट्रू। हमारे शास्त्र भी जो है वो ओरिजिनली तो संस्कृत में है ना, हमारे क्रियानुष्ठान वगैरह सारा वर्णन जो है वो भी संस्कृत के अनुसार है, वो संस्कृत में ही है। और जो ये जो पुराण है, महाभारत और रामायण, ये भी सारे संस्कृत में भी हैं, संस्कृत जो कि तो अपने जो डे टू डे लाइफ में जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो वहां से आता है, या सीख जिसको हम कहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यही कल्चर बनाता है ना। दैट इज द आंसर ना। ठीक है, ठीक है महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ महाराज। सुबीर जी एक मिनट महाराज जी, यहाँ महाराज जी इसी लाइन में लिखा हुआ है, नॉलेज कैम बट द प्रेस्टीज वाज नॉट देयर, कल्चर वाज नॉट देयर, तो इसका क्या मीनिंग है? मतलब ये है कि आप पढ़ो लिखो, किताब पढ़ो, बहुत सारी पढ़ लो, लेकिन अगर संस्कृत नहीं जानोगे तो सड़क रास्ता जो भी हो ना, आजकल तो मोबाइल फोन के अंदर और जो अपने इंटरनेट से आप सब कुछ जान लोगे, लेकिन संस्कृत नहीं होगी तो अपना आपका कल्चर नहीं होगा। अभी सड़क पे ही आदमी लोग सब मोबाइल फोन से आपको सब कुछ नॉलेज मिल जाएगी, राइट, लेकिन कल्चर क्या है वो तो सड़क रास्ता भी आदमी मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा जी। ये जी धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड ऑल स्कॉलर्स एंड लर्नेड पीपल ऑफ टुडे बी, हाँ चौथा क्वेश्चन महाराज जी, should all scholars and learned people of today be considered Brahmins? Are all modern teachers and professors to be considered the equivalent of the modern Brahmin acharyas? Why are you asking this question? How have you brought out? आर्टिकल में कहाँ पे ये लिखा मेरे सवाल नहीं, आर्टिकल में लिखा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि ये जो आजकल के, बिकॉज जो पढ़े लिखे होते थे उन्हीं को ब्राह्मण पहले कहा जाता था, और आजकल के जो पढ़े लिखे हैं वो तो संस्कृत के अलावा और बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। नहीं, यहाँ वो कहाँ, ये कहाँ है? पहले जमाने में ऐसा थोड़ी था। वो तो हम जी ने बार बार कह रहे हैं यहाँ पे कि संस्कृत पढ़ने वाला होना चाहिए। So without Sanskrit one cannot be पढ़ने वाला स्कॉलर, मतलब संस्कृत becomes a necessity for Brahminhood. You see, no, Brahminhood के लिए तो कल्चर होना चाहिए। अच्छा, और कल्चर का मतलब कल्चर मोर इम्पोर्टेंट, वर्णाश्रम धर्म का स्ट्रिक्ट पालन। अच्छा, that is what, ठीक है महाराज। Last question, page 303, Swamiji says, secondly, in connection with temple, there should be an institution to train teachers who must go about preaching religion and give secular education to our people. They must carry both
Is this the nidus of the idea of Swamiji of establishing a mutt and other centers across the country and the world? यहीं से क्या वो बताना चाह रहे हैं कि यानी वो आगे रिलीजियस वर्ल्ड जो हमारे सेंटर के माध्यम से स्पिरिचुअल एजुकेशन और सेक्युलर एजुकेशन दोनों जाएगी. दैट इज द आइडिया. हाँ, तो मठ जो एस्टेब्लिश हुए, मठ में जो सन्यासी हुए, दे विल बी द प्रोपगेटर्स ऑफ दिस कल्चर. एक तरह से मामा स्वामी जी कह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो मठ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. कॉलेजेस हमारे यहाँ यही तो है. इतने सारे स्कूल्स कॉलेजेस हो गए हैं ना, सन्यासी लोग रन कर रहे हैं उनको. जी जी जी, ट्रेनिंग द पीपल. रिलीजन भी जा रहा है, दे रहे हैं, और सेक्युलर एजुकेशन भी दे रहे हैं. राइट. ठीक है महाराज जी, दैट्स ऑल महाराज. ठीक है, प्रणाम महाराज. अच्छा देवाशीष. हेलो महाराज जी, प्रणाम महाराज जी. महाराज जी, मेरा फिफ्थ क्वेश्चन को पहले लेना चाहता हूँ, इसीलिए कि इसमें बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगा. तो व्हाट इज स्वामी जी प्लान फॉर फ्यूचर ऑफ इंडिया? ये मैंने ही तुमको पूछा ना, मैंने ही तुमको जब कहा, क्या कहा है, मैंने क्या कहा. इसमें पेज नंबर 303 पे है. हाँ. तो मैंने उसका रिप्लाई किया है, तुमने सुना नहीं, पढ़ा नहीं? नहीं, मैं तो क्या, I already replied you in the email. तो मैंने पढ़ा नहीं. I replied in the email. Have you not seen? नो महाराज, देखा नहीं मैं. ठीक है, मैं I asked that you tell us what is the plan of Swamiji in future of India. I have asked you. Oh, page number 3. In this article itself, और उसका लास्ट जो पैसेज है ना, लास्ट पेज में है, स्वामी जी ने उसको क्लियरली लिखा है. हाँ हाँ, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर बिल्डिंग, मैन मेकिंग एजुकेशन. जी. थर्ड इज रेजिंग ऑफ द मास्टर्स. फोर्थ इज शिव ज्ञान से जीव सेवा. जी. मिले तुमको कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ अब 4 पॉइंट हो गए. हाँ महाराज जी. रामकृष्ण मिशन दिया, आत्मनो मोक्षार्थम, आत्मा की मुक्ति जगत का हित. महाराज जी, थर्ड जीव सेवा. हाँ, कैरेक्टर बिल्डिंग, मैन मेकिंग एंड शिव ज्ञान जीव सेवा. थर्ड वन क्या था? मैं थोड़ा रिपीट कीजिए. Raising of mass. Raising of the masses. Maharaj ji, also women empowerment. Empowerment of the women also. बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को पता लगाना है, ये मुझे मत क्यों पूछ रहे हो? इस कंटेक्स्ट में, इस पैसेज में कैसे, इस आर्टिकल में? इसमें देवाशीष ने जो प्रश्न किया था, ये सेकेंडरी प्रश्न है, उसके एंड में बाद में किया, और मैंने उसको ईमेल से रिप्लाई करके कहा था कि यू हैव टू टेल मी. दिस इज द आंसर विच इस फ्यूचर ऑफ इंडिया में है. स्वामी विवेकानंद को पढ़ के आप लोगों को ये निकालना है. मैक्सिमम जातिवाद के बारे में बात की है स्वामी जी. अरे नहीं, तो इसमें बहुत सारी, इसमें सारी बातें नहीं है. जो बताना है 4-5 पॉइंट जो है जातिवाद में. अरे जातिवाद की बात ही मैंने कहीं ये वही उस आर्टिकल से है. हाँ, इसीलिए मैंने पूछा महाराज जी. स्वामी जी को पढ़ के यू हैव टू पास. स्वामी विवेकानंद ने नेशन बिल्डिंग के सारे प्रोग्राम बनाया है, दिया है. उसके आप किताब पढ़ के पता लगा के नेक्स्ट टाइम बताना. दूसरी किताब में पढ़ पुढ़ा के स्वामी जी का प्लान ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडिया. आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू देवाशीष. ओके महाराज जी, थैंक यू महाराज जी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन महाराज जी, page 7 में first question, the unity of religion therefore is absolutely necessary as the first condition of the future of India. There must be the recognition of one religion throughout the length and breadth of this land. Therefore, मेरा क्वेश्चन है, how do we get
go about it? How do we go about it? In practice, we have so many religions in India. We are not a Hindu Rashtra. ये तो अपने सतीश विक का क्वेश्चन में आंसर में थोड़ा बहुत बताया है. We are not a Hindu Rashtra. तो ऑलरेडी दे दिया मैंने जवाब उसका. हाँ, इसका जवाब आपने दे दिया. इसको छोड़ देते हैं महाराज जी. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. हिंदू तो बोलते हैं. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, 387 पेज. Therefore, the first plank in the making of a future of India, the first step that is to be hewn out of that rock of ages is this unification of religion. Why unification of religion is required? बड़ा क्वेश्चन था. Why unification का मतलब है, यूनिफिकेशन का मतलब है कि मैं शिव जी की पूजा करूं तो विष्णु की पूजा करो तो भी हम एक ही हैं. अच्छा जी महाराज. सबको एक साथ मिलाना है. हाँ. महाराज. थैंक यू महाराज जी. Third question. Page 288. Our lifeblood is spirituality. If it flows clear, if it flows strong and pure and vigorous, everything is right. Political, social, any other material defects, even the poverty of the land will all be cured if that blood is pure. Does it mean that we are not spiritual? And that is the reason we could not drive out poverty from our country. We are following the Western education system. True. We are following the Western education system. Is it the reason for not being spiritual? अरे स्पिरिचुअल का मतलब तो है, तुम कहानियां पढ़ो ना. गरीब आदमी को देने के लिए अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, उसमें भगवान देखकर. स्वामी जी का कर्मयोग में उन्होंने डिटेल में वर्णन किया. हाँ चलो हो गया. हमारे अभी ये क्वेश्चन तो आपने बता दिया कि स्पिरिचुअल नहीं होने का कारण हमारा देश में प्रॉपर्टी है. हमारा देश प्रॉपर्टी है. नॉट प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी. अच्छा. वी डोंट प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी. अच्छा. ओके जी महाराज जी. महाराज पावर्टी का कारण तो निकम्मापन है. मींस तमोगुण. निकम्मापन. अगर धर्म हो जाए, धार्मिक हो जाएगा, ठीक धार्मिक होगा तो निकम्मा क्यों होगा. वो मेहनत करेगा, गृहस्थ अपना गृहस्थ धर्म पालन करेगा, तो वो ये मतलब ये है कि आप धर्म का पालन नहीं कर रहे, उससे निकम्मे हो गए. क्यों? जी महाराज जी. निवेदिता हो. पहले महाराज स्वामी जी ने ऐसा भी कहा ना कि तुम पहले फुटबॉल खेलो, तो चोरी तो करो. मतलब इतना भारत तमोगुण में था तो कुछ तो उठ के तो करो, उसके बाद धर्म आएगा, ऐसा बोले उन्होंने. फुटबॉल खेलने का कहानी अलग है. नहीं वही बोल रहे हैं, पहले रजोगुण लाना पड़ेगा, तमोगुण. नहीं फुटबॉल खेलने बाद में धर्म आएगा. फुटबॉल खेलना मद्रास में इसीलिए बोला था कि लात मार के ब्रिटिश को हटाओ. नहीं इसलिए नहीं बोला था. पहले तमोगुण से ऊपर उठ के रजोगुण में जाना पड़ेगा, फिर अपना धर्म आएगा. हाँ तो ठीक है. तब प्रश्न क्या, प्रॉब्लम क्या है? ऐसा है कि अल्टीमेटली तो यानी ये एक कौन बोल रहा है? स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं जी. स्वामी विवेकानंद का उपदेश जो है ये धर्म हो गया कि नहीं? हाँ जी महाराज जी. उसको धर्म को पालन करो. अब बहुत सारी काम करते हैं ना, क्रियानुष्ठान करते हो तुम, तो ये तो फिजिकल चीज है ना, उसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ है? उसका गोल हमारा क्या है? लक्ष्य को देखकर स्पिरिचुअलिटी की बात करनी चाहिए. विदेशी लोग भी एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो मटेरियल चीजों के लिए एक्टिव है, उससे नहीं होगा. अच्छा जी महाराज जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन महाराज जी. अभी लास्ट क्वेश्चन है मेरा. The attempts of the great Ramanuja and of Chaitanya and of Kabir
to raise the lower classes of India, so Yes. that marvelous results were attained during the lifetime of those great prophets. Yet the later failures have to be explained and show why the effect of their teaching stopped almost within a century of the passing away of these great masters. Maharaj, my question is that, does it mean that the teachings of Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swamiji will also stop within 2 or 3 centuries of their passing away, because these teachings are not in Sanskrit? Yes. According to what Swamiji has said, if you accept that, accordingly ये भी चला जाएगा. Oh. कल्चर नहीं होगा तो चला जाएगा. यानी आप टीचिंग्स को आप इंटेंसली प्रैक्टिस नहीं करोगे, संयम नहीं करोगे, संस्कृत की जगह माइंड का ट्रेनिंग नहीं करोगे, बिल्कुल जरा सा बोका मतन बने रहोगे, जैसा बांग्ला बोलते हैं ना, मुर्गे से बने रहोगे तो ये भी चला जाएगा. स्वामी जी ने संस्कृत को इतना इम्पोर्टेंस दिया है. अब वो मैं कहना ही बड़ा मुश्किल है, ये क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कल्चर इज देयर एंड स्वामी जी गिव्स ग्रेट इम्पोर्टेंस टू संस्कृत. यहाँ पे संस्कृत को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है. यहाँ तक कह दिया कि बुद्ध का भी जो है, क्योंकि संस्कृत में नहीं था इसलिए वो सब चला गया, ज्यादा दिन नहीं रहा. तो मतलब ये है कि ठाकुर भी होगा, और ठाकुर ने भी तो खुद कहा है ना कि 200 साल के बाद में फिर मैं जन्म लूंगा. मतलब ये है कि 200 साल में ही ठाकुर का सब कल्चर सब जो है वो समाप्त हो जाएगा और नया इनकारनेशन की आवश्यकता पड़ेगी. महाराज स्वामी जी ने कहा है ना 1500 साल के लिए मैं भाव दे के गया हूँ. I have given the idea for 15 years, 1500 तो years. आइडिया तो है, तो वो आइडिया फॉलो करना है. हाँ. जीसस क्राइस्ट ने आइडिया किया, वो चल रहा है, लेकिन फिर नए अवतार की क्या जरूरत हुई? तो आइडियाज तो 15 इयर्स के लिए हैं, बट रिलीजन जीसस क्राइस्ट जो है वो तो 2000 भर का बोले थे, वो हो गया, लेकिन फिर भी अवतार हो रहे हैं. और ठाकुर बोल रहे हैं कि 200 साल के बाद में फिर अवतार लूंगा. क्या जरूरत हो गई फिर? महाराज जी, थ्रू रामकृष्ण स्वामी जी ने एक जगह ये भी कहा है कि through Ramakrishna mission, Sanskrit language is getting propagated. Things are getting नया स्तोत्र रचना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है संस्कृत में थ्रू रामकृष्ण मिशन ऑर्डर से, तो उससे नहीं होगा. हाँ नहीं, वाई रामकृष्ण मिशन, नॉन रामकृष्ण मिशन से भी हो रहा है. हाँ तो नहीं, स्वामी जी माँ का कल्चर की बात है. ठाकुर माँ स्वामी जी का भावधारा जो प्रचार हो रहा है वो सांस्कृतिक माध्यम से भी हो रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चले जाने के बाद भी वही खत्म हो जाएगा. हाँ, रामानुज श्री चैतन्य एंड कबीर जी, इन्होंने तो कोई संस्था रचना नहीं किया. ठाकुर माँ स्वामी जी जैसा रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन का थ्रू तो संस्कृत लैंग्वेज आगे बढ़ ही रहा है. अगर अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, अगर रामकृष्ण मिशन भी संस्कृत को प्रोपोगेट नहीं करे तो रामकृष्ण मिशन भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा. अच्छा, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव रीडिंग. यस. अब वो स्वामी जी ने अलग अलग प्रकार से कहा. माँ ठाकुर बोलते हैं 100-200 वर्ष के बाद में फिर जन्म लूंगा, तो क्यों जन्म लेंगे, जरूरत नहीं है तो. और स्वामी जी कहते हैं कि विचार जो है 1500 वर्ष तक रखेंगे. बुद्ध के भी विचार तो 2000 वर्ष तक हैं और अभी भी रहेंगे, तो फिर क्यों नए अवतार होंगे? You know, they're a very confusing वो statement. Don't get into it. दोनों तरफ से बोला जा सकता. ओके, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम. थैंक यू महाराज जी, थैंक यू. निवेदिता जी महाराज, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ऑलमोस्ट हो गया है. नॉलेज केम बट द प्रेस्टीज वाज नॉट देयर. वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. यहाँ पे मेरा वो प्रश्न था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर. तो आपने बताया है ना कि संस्कृत से अपना वेद उपनिषद पढ़ के स्पिरिचुअलिटी इज अवर कल्चर. दूसरा प्रश्न है, व्हाई स्वामी जी इज गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस ऑफ द पास्ट हिस्ट्री, जो अपना ग्लोरी.
हाँ, पास्ट जो है वो फ्यूचर तो पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ, यानी हमारी पास्ट की ग्लोरी होना चाहिए हमको। हाँ, अब आप ब्रिटिश लोगों से मिलेंगे, वो सब कहेंगे तुम गधे हो। नहीं, हम जानते हैं कि हम महान हैं, हमारे हाँ, उपनिषद महान हैं, हमारे पास्ट में ग्लोरी थी, राम कृष्ण हुए हैं, हाँ, हमारे संस्कृत का वो संस्कार है, हमारे गुरुकुल इत्यादि थे। ये सब पास्ट जो हिस्ट्री है वो जो है वो प्रेजेंट को हमारे को महत्व देता है, फ्यूचर की ग्लोरी निर्भर करता है। जी, यानी जी, वी मस्ट, स्वामी जी इसलिए कहते हैं वी मस्ट लर्न इट एंड गेट फील प्राउड अबाउट इट। हाँ, उनको हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हम कम नहीं है। हाँ। और तीसरा प्रश्न है कि हाउ मेनी, ये जो आपको पहले मैंने पूछा था ना, वो हाउ मेनी नेशंस आर पोरिंग ब्लड, इसका मतलब स्वामी जी के जो लैंग्वेज है ना, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड सो क्लियरली। पागल you have told us that culture is pouring or हिंसा is pouring. तुम तो डॉक्टर हो ना, डॉक्टर का मतलब है कि वो आर्टरी खोल के और ब्लड को डालना, ये ऐसा है। तो मैं ये ब्लड दे आर गिविंग देयर एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी दे आर गिविंग। चौथा प्रश्न है, व्हाट आर द लाइफ गिविंग कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ आवर रिलीजन? बोलो। यम और नियम यही है ना? अरे आत्मा परमात्मा का संबंध, शिव ज्ञान से जीव सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, जीवन का लक्ष्य सत्य है, और जीवन का लक्ष्य सत्य का महत्व, ये सारे के सारे तो लाइफ गिविंग प्रिंसिपल्स हैं। ओह, अच्छा अच्छा। केवल यम नियम नहीं है, प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स, जीवन का लक्ष्य। मतलब ईश्वर दर्शन जो बोल रहे ठाकुर। हाँ, ईश्वर दर्शन। जी। आत्मा हमारी आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, परमात्मा के साथ एक है, और या परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है, शिव ज्ञान से जीव सेवा, ये वेदांत के अनुसार ये सब सिद्धांत हैं। और उसके बाद में क्रिया अनुष्ठान भी सब हैं जी, ये सब के सब हैं, लाइफ गिविंग प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, उसके बाद है दिस इज डायबोलिकल, ये ओल्ड barbarism, no doubt, but do not blame the lawgiver who simply record customs of our community. ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब 295 में, पेज नंबर 295। हाँ, वो क्या है, डोंट टचिज्म, क्या बोला वो? दिस इज डायबोलिकल ओल्ड बार्बेरिज्म, जो 9th लाइन में है। वो क्या है कि वो छूना नहीं, ये कस्टम्स हमारी जो है ना। हाँ, डोंट टचिज्म। अरे वो शूद्र जो है वो अगर रास्ते से जाएगा तो यहाँ पे कान में वो घंटी बजा के जाएगा, उसको बोलते जाएगा पाड़िया। दूर रहा। इतना सब जो भयानक जो पुराने, वो क्या है कि ये साउथ में ये इतना ज्यादा प्रचलित था कि स्वामी जी ने उस बात को यहाँ पे कहा है, उस रेफरेंस पे देखना पड़ेगा। यानी ये बार्बेरिज्म नहीं तो और क्या है, भयानक ना। हाँ, अच्छा, ब्राह्मण्स मस्ट गिव द कल्चर टू द अदर क्लास, दैट इज व्हाई मोहम्मद इन्वेजन, मतलब मुस्लिम इन्वेजन वाज पॉसिबल। तो ये क्योंकि ऐसा है कि वो अधिकांश मानव से जो पूरे जो शूद्र वगैरह लोअर क्लास थे ना, वो तो प्राणहीन हो गए थे। कोई भी आगे राज्य करे, हमको क्या, हमको मुसलमान बना लो भाई, बना लो। अभी रिसेंटली हुआ है, रिसेंटली पता नहीं, कुछ तो मालूम है नहीं, 5-10 साल पहले हुआ है, इधर ही हुआ है, बिहार की तरफ या कहाँ पे। तो वाल्मीकि नाम के, वाल्मीकि जिसको कहते हो ना, जो शूद्र होते हैं ना, उसको वाल्मीकि नाम से कहा जाता है। तो वो एक बहुत सारे 50-100 वाल्मीकि जो है वो एक साथ मुसलमान बने आज के जमाने में। अच्छा, क्योंकि वो उनको उपेक्षित वो उनको
ब्राह्मण उनको समाज में कोई, हिंदू समाज में कोई उनका वो नहीं था, कुछ भी नहीं था उनका, वो सब मुसलमान बन गए। तो टॉर्चर भी करते हैं, टॉर्चर सब हम लोग साथ साथ नहीं उन्नति हो पानी नहीं देते हैं, पानी पीने के नहीं देते एक कुआं से। वो मुसलमान साबित को बार बार लिखते हैं। अभी टॉर्चर करेंगे, अगर आज अगर मुसलमान हिंदू बन जाएगा तो साथ, मुसलमान बन जाएगा तो साथ में बैठ के खाना खाएगा, क्रिश्चियन बन जाएगा तो वो खाना खाएगा, वो उसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है। वो समाज की जो जाति प्रथा थी ना, उसके विरुद्ध। और अभी हम भी तो नहीं जानते, हम तो नहीं जानते, लेकिन आप लोग जो हैं गृहस्थ हैं, आप लोग संसार में रहते हैं, जानते होंगे। लेकिन मैंने जो कहा ना कि 10-15 साल पहले ये चीज हुई थी कि बहुत सारे वाल्मीकि जो थे वो एक साथ मुसलमान। महाराज जी आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। क्रिश्चियंस बन रहे हैं, बैकवर्ड जगह जाओ, गाँव में जाए, हिंदू लोग इतना उपेक्षा कर रहे हैं तो बनेंगे ही। महाराज ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो गया है। हाउ कैन द डाउन ट्रोडन पीपल एक्वायर कल्चर फ्रॉम ब्राह्मण? बहुत मुश्किल है ये तो। जो ब्राह्मण स्कूल है, ब्राह्मण लोगों को करना है ना, ब्राह्मण लोगों को करना है, ब्राह्मण का स्कूल खोले ना, ब्राह्मण खुद नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करते हैं और दबाते पैर से। और अब देखो तुम आगे चलो ना, वही महाराज ईतू घोष मैडम ज्वाइन कर ली हैं, तो आपको जब ठीक लगे आप उनको उनके क्वेश्चंस ले सकती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा। एजुकेशन शुड बी बोथ स्पिरिचुअल एंड सेक्युलर। हाउ कैन वी अप्लाई इन आवर प्रैक्टिकल एजुकेशन? एजुकेशन अभी तो हो गया मैन मेकिंग एजुकेशन, खाली पैसा कमाना। रामकृष्ण मिशन में तो होता है ना मैन मेकिंग, जो रामकृष्ण मिशन में होता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो तुम्हारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मॉर्निंग में बैठ के ध्यान जप करते हैं, पूजा करते हैं, वो श्राइन की टेकिंग केयर ऑफ श्राइन ऑल्सो, ये स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट वो है। अब देखो यार, नरेंद्रपुर है और दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाके देखो ना, तुमको तो मालूम होगा, तो उधर ही हो डिपार्टमेंट। जी जी, बोलो ना, तुम बताओ। कॉमन स्कूल में तो नहीं होता है महाराज, मिशन स्कूल में तो हो सकता है ना भाई। हाँ, रामकृष्ण मिशन स्कूल में तो होते हैं। हाँ महाराज जी अवेकन सिटीजन प्रोग्राम, गवर्नमेंट में तो बहुत सारे फोर्सेस होते हैं ना। स्वामी जी बोल रहे हैं, लेकिन अपने हाथ में तो नहीं है ये चीज। जी बस हो गया महाराज मेरा कुछ। महाराज जी अवेकन सिटीजन प्रोग्राम जो आजकल रामकृष्ण मिशन के थ्रू ऑल ओवर इंडिया सारे स्कूल्स में कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्कूल में कर रहे हैं अवेकन सिटीजन प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, गुड गुड। अच्छा दिलीप भाई। जी प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ महाराज जी, मेरा पहला सवाल है, आर द पीपल ऑफ इंडिया आर स्पिरिचुअल राइट फ्रॉम द ओरिजिन? नहीं, ओरिजिनल तो सर ब्रह्मणा जन्मना जायते शूद्र। प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म होता है तो ब्राह्मण घर में भी जन्म होता है तो शूद्र ही होता है। वो संस्कार से ही वो स्पिरिचुअल होता है। संस्कार यानी उसका जात कर्म होता है, उसके बाद में यज्ञोपवीत होता है, ये सब होने के बाद होता है। एक दिन में थोड़ी कोई स्पिरिचुअल हो जाता है। वो संस्कार भारत में ये नियमित रूप से चलता रहा है, इसलिए भारत जो है वो आध्यात्मिक भूमि बताई गई है। महाराज जी, यदि ये जो आप बता रहे हैं ये बराबर है, परफेक्टली राइट, पर इसी कारण से शूद्र और वैश्य ये लोग इनसे अलग हो गए हैं, और इनको कैसे फिर ब्राह्मण लोग लाएंगे अपने कास्ट में, जो ये स्वामी जी कह रहे हैं? वही तो ब्राह्मण लोगों की मूर्खता है, और यही शूद्र लाके चाटा मारेंगे ब्राह्मण लोगों को। हाँ जी महाराज जी, मेरा दूसरा सवाल है, ऐसा है कि ऐसी समस्या होती है तभी भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं। ठीक है, सेकंड बोलो। यस, अच्छा सेकंड क्वेश्चन तो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, इट इज नथिंग टू डू। नंबर 3, आवर लैंड इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी. Sages and saints have come on this land of India. Even God have come from time to time. India is a spiritually rich country.
then why? Then what Swamiji wants more wants when it is written, we must build an India yet greater than what she has been. अब तो और क्या क्या जी पुअर कंट्री है नहीं जो कि उससे पेज अपने 289 हमारा पर है नहीं तो ऐसा है, आपका मकान कमरा मकान है ना, हाँ तुम्हारा लड़का बोलेगा कि बाबा मैं इससे भी बड़ा मकान बनाऊंगा, नहीं तो उसमें क्या आपत्ति है? नहीं हमें आपत्ति नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इट इज जेनिथ पे पहुंचा हुआ है इंडिया का पास्ट को, इससे आगे क्या मिलेगा? कृष्ण से ऊपर हम अरे गीता के ऊपर पास्ट कहाँ जाएंगे? इंडिया का पास्ट शंकराचार्य तो साफ हो गया, जी इंडिया का भूतकाल तो समाप्त हो गया, जो बड़ा होगा राम कृष्ण हो उसके वो तब समाप्त हो गए। अब तो हम नीचे गिरे हुए हैं ना, हिंदू आ गए, मुसलमान आ गए, उन्होंने राज्य किया, तब कहाँ हाँ। गई उनकी ग्लोरी, सब कहाँ गई? उसको बड़ा करना है कि नहीं करना है पहले से ज्यादा? इसमें क्या है? नहीं पहले से ज्यादा का मीनिंग क्या माना? ये लिखा है वी मस्ट बिल्ड एन इंडिया येट ग्रेटर देन व्हाट शी हैज बीन। इसलिए ये मत सोचो जैसे आप सोच रहे हो ना हाँ कि जी हमारे तो राम हो गए, हमारे कृष्ण हो गए इतनी हैं, है, इतने महान हो गए जी हैं, तो हमारा हमें देश महान है, हाँ और चुपचाप शंकराचार्य बैठे हो हैं, गए हम बैठे हैं चुपचाप बैठे हुए हैं। हाँ अरे ये स्वामी जी यही तो बोलते हैं, अरे ऐसा बैठे मत रहो, इससे भी महान बनना है हमको, तो क्या आपत्ति है तुमको? नहीं पर इससे महान में क्या चीज हो सकती है ये मैं जानना अरे चाहता अरे हूँ। अरे अरे ऐसा राम और कृष्ण से महान कुछ नहीं हो सकता है क्या? That is what my question is. रामकृष्ण हो गया ना, राम अरे और आज कृष्ण का से जमाना बढ़ महारामकृष्ण गया हो गया। आवाज बता जी। नहीं अब तुम समझ में कैसे, कैसा ये प्रश्न है? किसी भी चीज की महानता हो सकती है। हाँ। एक आदमी 6 फीट का है, वो 6.5 से 7 फीट का हो सकता है। एक राम है और एक कृष्ण है, एक ऐसा आदमी हो सकता है जो राम कृष्ण दोनों एक साथ हो सकता है। बिल्कुल 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 ओके जो राम जो कृष्ण वो राम कृष्ण हो सकता है। पर तो रामकृष्ण उसमें दोनों क्या मिलकर आपत्ति पर है? उससे महान बड़ा कोई भी आदमी महान हो सकता है, एक बच्चा भी जो है वो सोचेगा कि मैं राम से बड़ा महान बनूं। ओके जी। हाँ? नहीं पर उसमें क्वालिटीज क्या आएगी ये मेरा सवाल था कि राम और अरे वो कृष्ण बच्चा खुद बता देगा तुमको। जी। अब राम के पास कहा जाए, वो कहेगा कि राम के पास बंदूक नहीं थी, मैं बंदूक ले मैं बंदूक महान बनूंगा, राम से महान बनूंगा, बंदूक रहूंगा, वो तुमको बता देगा। जी ओके। मेरा दूसरा सवाल है, विदाउट मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ए belly will be fed only by religion. As Swamiji says, the Indian mind is first religious, then anything else. महाराज जी ये मेरा एक बहुत छोटा प्लेन कॉलोक्वियल लैंग्वेज का सवाल है जो कि रोज सामाजिक भाषा में बोला जाता है कि रिलीजन से पेट नहीं भरता है। ये तो स्वामी जी बोला है। उल्टा बोल रहे हो, भूखे पेट धर्म नहीं होवे। हाँ भूखे पेट जी हाँ। तो ये फिर स्वामी जी ने जो ये लिखा है, द इंडियन माइंड इज फर्स्ट रिलीजियस देन एनीथिंग एल्स, तो इसका मीनिंग क्या है? बट स्वामी जी ने बार बार कहा है, गांव में जाओ, गरीब हैं, भूखे हैं, उनको पेट भरो। बार बार स्वामी जी ने जितना कहा और किसी ने नहीं कहा। स्वामी जी को नींद नहीं आती थी, भूखे रहते थे, खुद नहीं खाते थे कि मैं कैसे जाऊं, लोगों के पास खाने को नहीं है जी। तो यानी वो क्या है कि जो आदमी भूखा है ना, हाँ वो भी पहले धार्मिक है, वो धर्म को ज्यादा महत्व देता है, इसलिए भूखा रह जाता है। वो अपनी किसानी करने के बदले पूजा अर्चना ज्यादा करता है। भारत का वो है, भारत पहले धार्मिक है और उसके बाद में फिजिकल है। अच्छा राइट जी। My next question is, Swamiji appreciated Mohammedan and British rule over India, and he also appreciated that their coming to India gave a salvation to the downtrodden people, to the poor. How? हाँ ये क्या सवाल ये अभी मैंने बताया ना, मैंने बताया ना कि कितने वाल्मीकि जो है वो मुसलमान बन गए। हाँ। अब मुसलमान यानी हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने
गरीबों को पीस डाला था, एकदम पीस डाला था। वो मुसलमान आ गए, उन्होंने सबको मुसलमान बना दिया, वो बच गए बाबा। अब खाने को तो मिल रहा है हमको। हाँ, वो ठीक क्लियरली पढ़ो, गरीब छोटी क्लास जो है वो सब मुसलमान हो गए। नहीं वो हो गए, लेकिन ये यहाँ पे जो लिखा है आर्टिकल में महाराज जी, विच आई एम रीडिंग, पढ़ो जी मैं पढ़ रहा हूँ। And it is one of the great blessings of the British rule in India. They say that it's a blessings. Even to the Mohammedan rule, we owe that great blessing, the destruction of excessive privilege. The rule was, after all, not all bad. Nothing is all bad and nothing is all good. The Mohammedan conquest India came as a salvation to the downtrodden and to the poor. हाँ, अब ये क्या है ना, हमारे पे इन्होंने राज किया, बड़ा अच्छा किया। स्वामी जी has appreciated their rulings. अरे अभी तो बेचारे वो गरीब लोग, खाने को नहीं मिलता था, उनको खाने को मिलने लग गया ना। हाँ, ये तुम ब्राह्मणों ने, ये तो अरे ये तो ये हिंदू धर्म की कोई थोड़ी सी सौभाग्य था, नहीं तो हिंदू धर्म गायब हो जाता। हिंदू धर्म ऐसा संकीर्ण हो गया था कि बस। हाँ, मैंने कहा ना कि आदमी वो शूद्र लोग सड़क पे जा नहीं सकेगा, उसको बोलेगा शूद्र जाएगा तो कान में घंटा बजा के जाएगा, जिससे वो जो ब्राह्मण लोग हैं दूर हट जाएंगे उससे। हाँ, शूद्र अपसर अपसर हट जा, दूर हो जा, दूर हो जा। इतनी भयानक चीज थी दक्षिण भारत में। हाँ, दक्षिण में तो सर ये द्रविडियंस तो यही थे, साउथ वाले। साउथ में जो द्रविड़ थे। हाँ 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 हाँ, वही तो। यस, वो तो यहाँ हिंदू, उत्तर में तो, यहाँ दक्षिण में भी, उत्तर में भी ये मुसलमान ये सब वो हो गए, बुद्ध हो गए। हाँ, क्रिश्चियन वो हो गए, जैन हो गए। उसी प्रकार क्रिश्चियन हो गए, इसी प्रकार इस्लाम हो गए, बचा दिया उन्होंने। So we can say that it's a blessing in disguise that the Britishers have ruled over India. Not only blessing in disguise, open blessing. Why disguise? I see. Ji. Okay, Maharaj ji. Next question now. How Shankaracharya made lower caste people Brahmin? The article says they would sometimes get hordes of Baluchis and at once they become Kshatriya. Also get hold of hordes of fishermen and make them Brahmins forthwith. They were all rishis and sages, and we have to bow down to their memory. हाँ, ये कैसे महाराज जी शंकराचार्य जी ने बताया? शंकराचार्य ने उनको यज्ञोपवीत दे दिया ना। शंकराचार्य ने यज्ञोपवीत दे दिया, उनको त्रैवर्णिक बना दिया। जी। स्वामी विवेकानंद ने भी किया था। क्या चीज है ये महाराज? क्या में नहीं तो यज्ञोपवीत देने से क्या वो जो ब्राह्मण नहीं थे उनको ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण यानी त्रैवर्णिक बना दिया था उन्होंने शूद्रों को। 25-30 लोगों को उन्होंने लाया, उसने पूजा वूजा करके उनको शूद्र बना, वो पोता यानी यज्ञोपवीत दे दिया था। हाँ, कि अब तुम शूद्र नहीं हो, अब त्रैवर्णिक हो गए। त्रैवर्णिक ऊपर नहीं, ऊपर पर आगे लिखा हुआ है they were all rishis and sages and we have to bow down to their memory. तो ये मेमोरी कहाँ से आ जाती है? एकदम क्या समझ रहे हो, क्या बोल रहे हो? अरे जी ये पूरा आखिरी सेंटेंस है, फिर से पढ़ो। महाराज ये 3 लाइन में पढ़ रहा हूँ। They would sometimes get hordes of Baluchis and at once make them Kshatris. Also get hordes of fishermen and make them Brahmins forthwith. They were all rishis and sages. We have to bow down to their memory. हाँ, तो क्या प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि जब ये निम्न जाति के लोग थे, शंकराचार्य जी ने इनको ब्राह्मण बना दिया, तो एकदम ये ऋषि मुनि बन जाते हैं और संत बन जाते हैं, और हमें वो जिन्होंने बनाया वे ऋषि मुनि थे।
Okay. उनमें इतना क्षमता था, इतना पावर था कि उन्होंने किसी को भी ऋषि मुनि बना सकता है। नहीं, उन्होंने सबको बना दिया। ऋषि थे ना ये लोग, इन ऋषियों ने उनको ब्राह्मण बना दिया। Okay. Right. Now my next question is, why scripture says give to deserving person, then you get heaven, otherwise it leads to a other place. हाँ, ये पेज 297 पे लिखा हुआ है। Give a gift to donation to a deserving person. Otherwise, प्रश्न क्या है आपका? हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा है कि give to deserving person, then you get heaven. Otherwise, it leads to other place, that's a hell. तो डिजर्विंग पर्सन को ढूंढना कहाँ चाहिए, कैसे ढूंढेंगे, ये आर्टिकल में तो इन्होंने लिख दिया है। अरे एक बदमाश गुंडा होवे और वो तुमसे चुपके से मांगने के लिए आए कि मेरे कुछ पैसा दे दो, आपने दे दिया तो उसने और बदमाशी की, गुंडागिरी की, तो तुमको पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? जी लगेगा। दिलीप भाई बोलो। नहीं, ये बराबर, पर इसके अंदर तो बिल्कुल स्वामी जी ने क्लियर ये पूरे आर्टिकल में बताया है कि सिर्फ ब्राह्मण एंड ब्राह्मण। ही सेज you on the other hand should give help only to the real Brahmin who deserves it, and they will take you to the heaven. तो हमने सिर्फ ब्राह्मणों को ही नहीं, यानी वो है पहले जमाने में वो था, यानी ऐसा है उनका। ये कहना है कि बुरे आदमी को अगर दोगे तो तुम नरक में जाओगे। हाँ, नरक में जाओगे। दैट इज ओके। और नहीं, आगे चलो महाराज जी। नाउ माय अनदर क्वेश्चन इज, बी thou all of one mind, be thou all of one thought, for the days of yore the gods being of one mind were enabled to receive oblations. Mohammedan religions also speaks the same thing. What is the महाराज जी, तो ये कहते हैं वो मुस्लिम भी यही कहते हैं, और आखिर में नतीजा ये निकलता है कि जो मुस्लिम धर्म अंगीकार नहीं करता है या जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है। यही तो बोला जा रहा है, तो यही कहा जा रहा है ना। नहीं, वो स्वामी जी संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांत जानसाम, ऐसा एक मंत्र है कि हम एक साथ जहाँ एक साथ रहें, एक साथ खाए पिए, हमारा विचार एक प्रकार के हो, हमारा लक्ष्य एक प्रकार का हो, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं ये जानना कहते हैं ना कि मोहम्मदन धर्म में नहीं, यहाँ पे हमारा मन एक होना चाहिए। दिलीप भाई, अशोक भाई, हमारा मन तो कम से कम एक होना चाहिए ना, एक है कि नहीं? अब प्रश्न क्या है तुम्हारा? महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि इससे यू बिकम ए स्टॉन्च हिंदुइज्म, हिंदू हो जाता है कि जो हिंदू नहीं है वो हमारा दुश्मन है, ये इसकी भावना नहीं होगी जैसे मुस्लिम में हुई। यहाँ ये इस संबंध में नहीं कहा जा रहा है ये। ओके, दूसरे कॉन्टेक्स्ट दूसरा है। अगर मैं ये कहूँ कि अरे भाई दिलीप भाई, मैं और तुम एक हैं, तो इसका मतलब ये है कि दिलीप भाई और दूसरा भाई वो उसका दुष्शत्रु है, ऐसा थोड़ी है। ओके, इस सेंस में हम 4 लोग बोल कहते हैं भाई, 10 लोग मिलके बोले हम एक हैं, हम एक हैं, तो बाकी 20 वाले कहेंगे कि हम तुम्हारे दुश्मन हो गए, फिर ऐसा थोड़ी होता। ये कैसा आर्ग्यूमेंट? ये मुस्लिम धर्म में तो यही बताया इन्होंने। अरे मुस्लिम धर्म की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे, हिंदू धर्म की बात। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज Swamiji favor small nations by giving examples of European countries and Japan? क्या? पेज नंबर 300 पे इन्होंने ये लिखा है स्वामी जी ने कि छोटी कंट्री होने पे वो एक रहते हैं और वो तुम पे रूल करते हैं। पेज नंबर 300, उसके ऊपर की 5 लाइन है। जो इसका ऐसा है, स्वामी जी बता रहे हैं छोटी कंट्री है उसका एडवांटेज तो होता है, ये बात क्लियरली बताया यहाँ पे। यस, दैट इज व्हाट, वेरी क्लियरली बताया है कि एक छोटी कंट्री होती है तो एक साथ लोग मिल के रख सकते हैं उसके साथ में, ये बात डेफिनेटली बताइए स्वामी जी। हो गया? हाँ, बस हो गया महाराज जी, प्रणाम।
इतु प्रणाम इतु महाराज। हाँ जी, प्रणाम महाराज। मेरा पहला प्रश्न है, देयर विल बी अनदर कास्ट क्रिएटेड हैविंग द एडवांटेज ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज which will quickly get above the rest, and who है, what are the specific and extra qualities among the Sanskrit known people which will enough to rule? सुनाई पड़ रही है क्या? Yes. हाँ हाँ हाँ, पढ़ा है। तुमने संस्कृत पढ़ा है जी। क्या? संस्कृत पढ़ा है? थोड़ा तो पढ़ा है जी, ज्यादा लेकिन वो शब्द रूप, क्रिया रूप, ये सब याद करने पड़ते हैं, क्योंकि धातुओं को याद करना पड़ता है, और लैंग्वेज लिखना है तो बहुत डिसिप्लिन से, उल्टा पुल्टा लिखने से काम नहीं चलेगा। आपका मन कितना डिसिप्लिन हो जाता है याद रखो। अच्छा, आजकल क्या है, कंप्यूटर से हो जाता है, मन की डिसिप्लिन की बात ही नहीं करते हैं। यानी आज का आदमी अगर है ना, स्टूडेंट जो है, वो सेंटेंस भी है, हाथ से सेंटेंस भी शायद दिख नहीं पाएगा, वो सब कंप्यूटर से ही करता है। लेकिन पहले तो सब रटना पड़ता था, लिखना पड़ता था, वो जरा सी मात्रा इधर उधर हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्वामी जी बोलते हैं संस्कृत के साथ में कल्चर है, ट्रेनिंग है, ये बात करें जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन, बट समटाइम्स ए गिफ्ट टू अनदर पर्सन who does not deserve it leads to the other place, says our scriptures. So what does this sentence signify? डिस्कस करिए ना, अभी तुम नहीं थे यहाँ। अभी जो डिस्कस करे हैं, ये दिस इज वेरी बैड। तुम अपने क्वेश्चन के समय रहोगे और बाकी क्वेश्चन के समय नहीं रहोगे, ये काम नहीं चलेगा। नहीं महाराज, हमें All these points are very nicely discussed in detail. अगर एक आदमी बदमाश आदमी को तुम चीज दोगे और उसका नुकसान होगा, वो दूसरी बदमाशी करेगा, लोगों का कल्याण करेगा, तो तुम्हारे को भागी होगे ना, तुम पाप के भागी होगे कि नहीं हो भागे? जी 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 जी। अच्छा, और थर्ड क्वेश्चन है therefore is that we must have the whole education of our country, spiritual and secular, in our own hands, and it must be the lines, though national methods are as traditional methods as practical. So according to Swamiji, how to maintain these lines? ये भी हो गया। ये हो गया, शास्त्र का स्टडी करना है, प्रैक्टिस का योगा है, ये तो सब आजकल चालू हो गया। योग की ट्रेनिंग होने लग गई है, ये सब होने लग गया है। स्टेशन। ओम शांति शांति। हरि राम कृष्णार्पणमस्तु। नमस्ते ऑल ऑफ यू। ठीक है।